So hi 12th class, I am back with the next video for 12th chemistry. For 12th chemistry, we were studying the chapter 10, that is alcohols, phenols and ethers. Okay, yesterday in the last lecture we were doing reactions of alcohols. So proceeding up, we will now proceed this reaction of alcohol, reaction of alcohols with hydrogen halides. Hydrogen halides. The next reaction which we are going to study is reaction of hydrogen with alcohols with hydrogen halides. So take alcohol, hydrogen halide HX, okay, like HCl, HBl, it can be anything. So what will happen? Only this nucleophilic exchange will take place. This is also nucleophile, this is also nucleophile. So nucleophilic exchange will take place. What will happen? RX plus H2O. So haloalkane will be formed. Haloalkane will be formed in this case. Haloalkane will be formed in this case. Okay. See the example. I will take one example. CH3OH plus. Alcohol ले लिया, HX, HCl. So what will become? This is also nucleophile. This is also nucleophile. Only nucleophilic substitution will take place. So it will become CH3Cl plus H2O. So क्या बन गया ये? क्या बन गया ये? ये बन गया this methyl chloride. Methyl chloride, or in other words क्या बोलेंगे इसे? क्लोरोमीथेन. Chloromethyl. Okay. So when alcohols react with hydrogen halides, methyl chloride means haloalkanes are formed. Okay. These reactions that you have studied in the last chapter also. This is easy. Okay. Now we will proceed towards my next reaction. That is my next reaction is a reaction of alcohol with phosphorus halides. With phosphorus halides. Okay. With phosphorus halides. This reaction also you have studied in the last chapter. For example, take ROH plus PCl3. PCl3. You have studied this reaction. 3 molecule इसके लोगे क्या बनेगा? 3RCl plus H3PO3. So again, when you will treat alcohol with phosphorus halide, this is phosphorus trichloride. Okay, so what you will get? You are again getting haloalkanes. You are getting. Okay. Now the next reaction is, this is phosphorus trichloride. Suppose you have taken alcohol. This is the second reaction. This is the first reaction. Alcohol with PCl5, phosphorus pentachloride. So what will become? You will get RCl plus POCl3 plus, what is left? Plus HCl. Again you are getting haloalkane. Okay, so this reaction I have studied in the last chapter also. So when you will treat alcohol with phosphorus trichloride or phosphorus pentachloride means halides. So what you will getting? You are getting haloalkane. You are getting haloalkane. Okay. Similarly, एक छोटी सी reaction इसी के साथ भी थी. In the last chapter, we have studied ROH plus SOCl2. This is thionyl chloride. This is thionyl chloride. So what you will get? You will get RCl plus SO2 plus HCl. So again, you are getting haloalkane in this case. Haloalkane in this case. So these all are the reactions of alcohol. Okay. ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, पिछले बार तुमने पढ़ी थी. फॉर ऑर्गेनिक रिएक्शंस वी विल प्रैक्टिस किया करो. दिस इज डन. These are this reaction, and now I will be proceeding towards the next reaction, that is dehydration reaction. That is dehydration reaction of alcohol. Dehydration reactions. Okay.
Dehydration. Dehydration, you know, all of you know that what is dehydration reaction. Dehydration means removal of water from alcohol. Removal of water from alcohol. Okay. So there can be many alcohols. 1 degree alcohol, COH. This is CH3HH. This is 1 degree alcohol, प्राइमरी alcohol. ठीक है, एक ही R ग्रुप लगा ना कार्बन के साथ. This is primary alcohol. Okay. CH3 H and OH. This is 2 degree alcohol. दो R ग्रुप लगे हुए हैं. 2 degree alcohol. Similarly, CH3 OH. This is what? This is 3 degree alcohol. 3 degree alcohol. ओके, क्योंकि इसमें 1 2 3 ग्रुप लगे हैं. अब इसमें क्या होगा, तुम डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालोगे, जैसे H2SO4 डालोगे. H2SO4 डाला, ठीक है, यू हैव यूज्ड H2SO4, तो हमेशा इसमें वाटर निकलेगा, तो बीटा कार्बन से निकलेगा. ये अल्फा आ गया और CH3 है ना, मैं इसको लिख देता हूं CH2H. सेम ही रहेगा. तो ये डालते ही मेरे ख्याल 440 केल्विन पे टेम्परेचर देना पड़ता है. ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करेगा और ये वाला इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड दिस साइड. CH3 को मैंने CH2H लिखा है. ये वाला बॉन्ड, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन. अल्कोहल ग्रुप जिसके साथ लगा दैट इज अल्फा, उसके अगले वाला बीटा कार्बन. तो बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, तो क्या बनेगा, ये बॉन्ड इस तरफ चला गया, इस तरफ निकल गया, मतलब H और OH बाहर हो गया. -H2, और यहां क्या बचा देखो, C से OH चला गया, HH बचा, H और ये डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड CH2. तो ये ठीक है, तो क्या बच गया अपने पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसके 2 H बच गए, CH2 डबल बॉन्ड CH2. तो क्या बन गया, ये अल्कीन बन गया ना. अल्कीन बन गया. कौन सा अल्कीन है, इथीन है. दिस इज इथीन. ओके. सिमिलरली जब 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो वी विल यूज फॉस्फोरिक एसिड. यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे थे 2 डिग्री में हम इस्तेमाल करेंगे फॉस्फोरिक एसिड का, H3PO3, और 380 केल्विन में इसको हीट करेंगे. तो देखो, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस बोथ आर बीटा कार्बन. किसी में से भी हाइड्रोजन रिमूव करा लो, मैंने मान लो इसमें से करा दिया CH2H, तो ये बॉन्ड इस तरफ चला गया और ये बॉन्ड आउट हो गया. ठीक है, तो ये एक H, ये H और OH निकल गए, -H2 आ गया. ठीक है, क्या बच गया, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3. ठीक है, तो हो गया. तो ये भी क्या बन गया, दिस इज 1 2 3. ठीक है, सो दिस इज pro 1ene. Meaning you said it, double bond is coming on 1 and 2 carbon, first and second carbon. We have to prefer the lowest carbon point, so pro 1ene. Okay, so इसमें हम फॉस्फोरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं 2 डिग्री में, 1 डिग्री में H2SO4 इस्तेमाल करते हैं. 3 डिग्री में भी we also use phosphoric acid, H3PO3. Similarly, this is alpha carbon, these all are बीटा. किसी में से भी हाइड्रोजन निकाल लो, मैंने इसमें से निकाल लिया CH2H, ये हाइड्रोजन इस तरफ गया, ये तरफ चला गया, -H2O. अब देखो क्या बच गया, CH3 वैसे ही है, CH3 वैसे बच गया, C वैसे बच गया, CH3 वैसे बच गया. इसके पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3. तो इसको क्या नाम आ गया, 2 मिथाइल. 2 पे मिथाइल ग्रुप है, प्रो 1ene. So after dehydration of alcohol, you are going to get the alkene. Okay, this all things you know, I think. ये सारी चीजें तुम जानते हो. Dehydration हो गया, ठीक है. पहले क्लास में पढ़ा था मैं. अब इसके बाद अगला रिएक्शन आ गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. The next reaction we are going to study is that is oxidation reaction. The next reaction we are going to study is oxidation reaction. अब सेकंड लास्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, that is oxidation of alcohols. Oxidation of alcohols. ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ेंगे. तो इसमें पहले 1 डिग्री अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन पढ़ लेते हैं. 1 डिग्री मतलब CH एंड CH3OH. ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं. तो इसमें देख लो, ऑक्सीडेशन में अल्फा कार्बन का इस्तेमाल होता है. डिहाइड्रेशन में जो हमने पिछले पढ़ा भी,
उसमें क्या हो रहा था, बीटा कार्बन का इस्तेमाल हो रहा था, इसमें अल्फा कार्बन का इस्तेमाल होता है, यह याद रखना, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कोई एजेंट डाल दिया, KMnO4 डाल दिया, पोटेशियम पर मैग्नेट, K2Cr2O7 डाल दिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, यह डाल दिया PCC, दिस PCC का मतलब है दिस पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट, पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट, कोई भी डाल दोगे, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल पे, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, इनसे तीन कोई भी देखेगा, यू कैन अप्लाई एनीवन, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें से क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें से क्या निकल जाएगा, -H2, तो क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, और क्या बन गया आगे जाके, निकाल के देखो क्या बनेगा, H एक वैसे रह गया, C वैसे रह गया, CH3 वैसे रह गया, और ये डबल बॉन्ड O बन गया, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, ध्यान से इसको देखो, तो इसको ऐसे लिख दो, CH3 CHO, सो दिस इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पढ़े ना लास्ट में, CHO, डबल बॉन्ड O होगा, एक तरफ R होगा, एक तरफ H होगा, ठीक है। सो दिस इज एल्डिहाइड, तो इसके बाद एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। अब एल्डिहाइड आ गया, अब ये देखो एल्डिहाइड आया, CH3 CHO, ठीक है। इसमें मैं क्या करूं, फिर से इसकी ऑक्सीडेशन कर दूं, फिर से इसकी ऑक्सीडेशन कर दूं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी ले लो, KMnO4 ले लो, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, या K2Cr2O7 ले लो, अगेन ऑक्सीडेशन के लिए, फिर से मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर दूं, तो देखो क्या होगा, दिस CH3 C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, एल्डिहाइड है, ऐसे करके ये, इसी को यहां पे जाके लिख रहा हूं, इसी को यहीं लिख रहा हूं, ऐसे है, तो इसकी मैंने ऑक्सीडेशन कर दी, तो इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH आ गया। तो ये कौन सा ग्रुप आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कंपाउंड क्या बन गया ये, CH3COOH। सो 1 डिग्री अल्कोहल की तुम ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, गॉट इट। 1 डिग्री अल्कोहल की बाय यूजिंग अ सुटेबल रिएजेंट तुम ऑक्सीडेशन करोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, और तुम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। सो इसमें कौन सा कार्बन इस्तेमाल होता है, इसमें देखो अल्फा कार्बन इस्तेमाल होता है, OH ग्रुप जिसके साथ जुड़ा है वहां से हाइड्रोजन निकलता है, इसमें अल्फा इस्तेमाल होता है, डिहाइड्रेशन में बीटा इस्तेमाल होता है, गॉट इट। तो ये भी हो जाएगी 1 डिग्री अल्कोहल की। अब हम चलेंगे आगे की तरफ, अब मैं आगे चलूंगा 2 डिग्री अल्कोहल की तरफ, 2 डिग्री अल्कोहल की तरफ, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल ले लो, COH CH3 और H, ठीक है। इसके लिए 2 डिग्री अल्कोहल है, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो इसकी जब ऑक्सीडेशन करोगे तो तुम क्रोमेट आयन लोगे, क्रोमियम ऑक्साइड लोगे, ठीक है, तुम क्या लोगे, क्रोमेट लोगे, ठीक है, CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड लोगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पे सिमिलरली H है, ये इस तरफ जाएगा, और ये अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड O CH3 यू नो दिस इज व्हाट, दिस इज कीटोन, ठीक है, दिस इज कीटोन। सो 2 डिग्री अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करते हो तो कीटोन बनता है, गॉट इट। अब 3 डिग्री अल्कोहल की तरफ चलते हैं, CH3OH। अब इसके अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं देता है, ये ऑक्सीडेशन नहीं देता है, बिकॉज दिस ऑक्सीडेशन करने के लिए अल्फा जो कार्बन है, इसके साथ जो कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नहीं देता है। तो इसके ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, काफी पापड़ बेलना आसानी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले इसके साथ H2SO4 लेके, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लेके पहले क्या करना पड़ता है, इसका डिहाइड्रेशन की करानी पड़ जाती है, डिहाइड्रेशन की करानी पड़ जाती है, सबसे पहले इसकी डिहाइड्रेशन करानी पड़ती है, -H2O। तो देखो क्या होगा, ये है CH2H आ गया, तो ये बॉन्ड इस तरफ जाएगा और ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3
CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये करा दिया। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं, लंबा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ऑक्सीडेशन कराने का मतलब है यहाँ से हमें कार्बन निकालना पड़ेगा, यहाँ से H2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और H2 वर्ड करके एक मॉलिक्यूल है, तो क्या बन गया CH3 डबल बॉन्ड O, क्या बन गया, कीटोन बन गया ना ये, CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ से H2O निकल गया, CO2 निकल गया, ठीक है। यहाँ पे कीटोन बन गया। अब इसकी कीटोन की तुम्हें पता, फिर से हम क्या करेंगे, दिस ऑक्सीडेशन फिर से करेंगे, ठीक है। तो यहां से फिर से क्या होगा, कार्बन निकल जाएगा CO2 की फॉर्म में, 2 H2 निकल जाएंगे H2 की फॉर्म में, तो एक H बच गया और एक ऑक्सीजन बच गया, तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O OH CH3, तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो बाय दिस टिपिकली वी कैन पहले डिहाइड्रेशन करा के फिर लंबा प्रोसेस है ये, इस तरीके से ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। इसमें टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है, 420 केल्विन की मेरे ख्याल से 420 से 500 केल्विन के बीच में टेम्परेचर रखना पड़ता है, तब जाकर रिएक्शन होती है। इट इज नॉट अ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन इसमें से बाहर करनी है, ठीक है। तो कोई भी एल्कोहल ले लो, चाहे तुम ले लो CH3HOH 1 डिग्री एल्कोहल ले लो, ठीक है। चाहे तुम ले लो CH3HOH 2 डिग्री एल्कोहल ले लो, ठीक है, दोनों ले लो। इसमें जब भी तुम्हें कॉपर है और 573 केल्विन दिया है, तो क्या होगा, चुपचाप यहां का बॉन्ड इस तरफ चला जाएगा और ये बाहर हो जाएगा, मतलब यहां का बॉन्ड यहां चला गया, ये बाहर हो गया, -H2 बाहर हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया CH3H डबल बॉन्ड O, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल का बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड समझते हैं ना, डबल बॉन्ड होता है एक तरफ, R होता है एक तरफ H होता है, दैट इज एल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री एल्कोहल में सेम तुम्हें कॉपर और 573 केल्विन दिख जाए, मतलब क्या है, ये बॉन्ड इधर है और ये आउट है, ये बॉन्ड इधर है और ये आउट है, तो क्या बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O, तो कीटोन बन जाएगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O हो, एक तरफ CH3 हो और एक तरफ H हो, तो एल्डिहाइड हो, दोनों तरफ R ग्रुप हो, तो कीटोन होता है, ठीक है। अब 3 डिग्री एल्कोहल, जैसे उसकी हमने अभी कराई थी ना ऑक्सीडेशन नहीं होती थी 3 डिग्री की, क्योंकि इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो उसकी उसी तरीके से CH3, ठीक है। इसमें क्या है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो इसमें जब कॉपर और इन द 573 केल्विन तुम डालोगे तो रिएक्शन CH2H में लिख लूं, ये इस तरफ चला जाएगा और वाटर पूरा बाहर हो जाएगा, ठीक है। वाटर पूरा बाहर हो जाएगा, तो उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी, -H2 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो उसमें एल्कीन बनती है। तो दिस इज डिहाइड्रेशन। 1 डिग्री और 2 डिग्री में डिहाइड्रेशन होगी और 3 डिग्री में डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन होगी 1 और 2 में डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और इसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर बाहर निकलेगा। दिस इज स्पेशल केस ऑक्सीडेशन के लिए 3 डिग्री का, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और दिस डिहाइड्रोजनेशन